Hi, Mohammad Farhan. Welcome on Europedia. Hello, sir. Firstly, I would like to thank you and your peer mentors, and special thanks to Ankit sir and Sanyam sir who make me believe that yes, I can do that. Okay, so Farhan, you recently got selected in MS program abroad, that is in Italy, and that is Polimi Italy. That is a MS program, and you're electrical engineer. So, Farhan, you were also preparing simultaneously for GATE exams and all, exploring options in India, as many other students do. And now we have multiple opportunities, like we have options in India, abroad, everything. And I interact with people like you who get selected in universities and try to understand, the process of getting selected in these universities, and try to understand how to explore more options. And also, in the process, we inform students that yes, these are the options and this is how you can explore it, and these are the opportunities if you do your higher education from these universities. तो आपके साथ जो मेरा आज इंटरेक्शन है, फरहान, दैट इज इन दैट डायरेक्शन. We would like to know about MS programs in Italy. You have got selected there, and आपने गेट वगैरह की भी तैयारी की, वो सारा आपने की, तो उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे. सो आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड फर्स्ट, लाइक विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड आपका ग्रेजुएशन कॉलेज कौन सा है, and after that you started preparing for certain exams, gate, and also how was that journey till you got selected finally in Italy? Definitely, sir. Like if I talk about my background, मेरी engineering जो थी BTech electrical engineering में थी from Guru Gobind Singh Indraprasth University in Delhi, and my college is affiliated to that, which is JIMS in Greater Noida. So I passed out in 2021 June and with a CGPA of 9.06, and moreover I am the gold medalist in electrical engineering. Mhm. उसके बाद फिर like there are two options for me. I can either do the college placement and work in the industry and or prepare for the higher education or government exam. So I choose to prepare for GATE and engineering service exam. But uh, like in 2023, I've got a GATE score of 300, which is not that sufficient to get into the IIT with which branch I want to go, like VLSI. Or आई डोंट नो, इस बार जो गेट का एग्जाम था इलेक्ट्रिकल का वो काफी टफ आया था, और इस वजह से जो गेट स्कोर थे वो ड्रास्टिकली डाउन हुए. अगर मेरा 50 और 60 मतलब 300 350 400 के आसपास भी गेट स्कोर होता तो मुझे एनआईटी तो हो वगैरह जाता. या मिल जाता. तो हम्म. बट ठीक है, वो नहीं हुआ. वो जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो उसके हम्म. बाद फिर आई एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड. लाइक आई एम इन कन्वर्सेशन विद अंकित सर एंड संयम सर. तो हम्म. आई अप्लाइड इन इटली. देयर इज अ यूनिवर्सिटी पॉली मिलान. सो उसमें हम्म. मेरे को दो ऑफर आए. एक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अनदर इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. हम्म. तो वहाँ पर उसके बाद साथ इटली के साथ साथ और भी मतलब अगर कंट्रीज में मैंने अप्लाई किया है, लाइक यूएसए और स्वीडन एंड हम्म. हम्म. स्वीडन, इटली एंड इन जर्मनी आई विल अप्लाई इन द अपकमिंग मंथ्स. Okay, so मतलब you are still in the process of application and still waiting for more options to explore. यस. यस सर. Okay, so Farhan, now I would like to ask you couple of things here. सबसे पहले तो आपने एग्जाम लिखा और आपका स्कोर नहीं आया, और आपने और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. ऐसा बहुत सा स्टूडेंट है जो मैं जानता हूँ, जो 4-5-5 साल इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम्स लिखते रहते हैं. अब कई बार क्लिक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है PSU क्लिक नहीं होता. और मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. आपको 5-6 साल अपने बैठ के वेस्ट करने के बजाय ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए, और ऑप्शंस अच्छी मिल जाती हैं. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा फरहान, कि आपने किस स्टेज पे डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को जो है वो बाहर का भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए ऑप्शंस, और यहाँ वेट नहीं करना चाहिए. और दूसरी बात जो स्टूडेंट को बाहर ऑप्शन एक्सप्लोर करने से रोकती है, वो होता है उनका, आई विल से, फियर दैट लॉट ऑफ मनी विल बी स्पेंड, और मेरे को बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी और बहुत उसमें पैसा लगेगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता. तो अपने ऊपर जो एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन है कि साहब मैं बाहर से मास्टर्स नहीं कर सकता, ये इस चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि नहीं मेरे को करना है? और दूसरा, एवरेज इंडियन के पास पैसा नहीं है, वी ऑल नो, वी आर नॉट अ वेरी रिच कंट्री, तो लोगों के पास पैसा नहीं, हमारे पेरेंट्स इतना पैसा हमारे लिए नहीं खर्च सकते, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? हाँ श्योर सर. लाइक जैसे मैं था जब गेट की तैयारी कर रहा था, मैं आपके चैनल पे मतलब हम्म. कंटिन्यूअसली वीडियोस देखता था आपकी मोटिवेशन वगैरह.
तो जब फर्स्ट टाइम मैंने जब गेट 2020 में लिखा था, तो हम्म 2022 में लिखा था, तो उस समय मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, मतलब मैंने दो तीन ही सब्जेक्ट तैयार करे थे, तो उसके बेस पे मैंने दिया, तो मेरा एक मार्क्स से रह गया था, तो क्वालिफाई नहीं करा था मैंने। मैंने कहा ठीक है, हम्म नेक्स्ट मंथ में हम ट्राई करते हैं। बट हम्म 23 में जो है वो पेपर टफ था, या जो भी कहो, मतलब मेरा नहीं हुआ, इतना अच्छा स्कोर नहीं था, मतलब ठीक है। हम्म उसके बाद फिर मेरा जो मेन टारगेट है, बच्चों को मेन क्या देखना चाहिए, मतलब साल वेस्ट करने से ज्यादा बेटर ये है कि मेरा कभी मास्टर्स का इंटेंशन नहीं था, मुझे मास्टर्स कभी नहीं करना था। मेरे को करनी हम्म, थी खाली मतलब पीएसयू या फिर जॉब, और फिर लाइफ सेटल करनी थी थोड़ी। बट ठीक है। मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मास्टर्स के लिए जा रहे थे, और हम्म मैं आपके चैनल भी कंटिन्यूसली देखता था, साथ के साथ और भी मेंटोर से, तो वो लोग हम्म बोलते थे कि अगर आपको गुड करियर चाहिए तो जरूरी नहीं आपको पीएसयू ही जाए, तो आप हम्म मास्टर्स करके वहां से काफी अच्छा हम्म पैकेज और वो सब ले सकते हो, वो ले अपॉर्चुनिटी सकते हो। ज्यादा बेटर है पीएसयू के मुकाबले, क्योंकि वहां पर लाइफ सही। बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। तो हम्म फिर मैंने उधर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी। अब मेरा हम्म मेन गोल था, मेरे को करनी थी मास्टर्स इन वीएलएसआई या फिर मशीन लर्निंग की साइड में। तो हम्म अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट पकड़ लूँ, और इंडिया हम्म में जो है मास्टर्स जो अच्छी जगह से होती है वो टॉप आईआईटीज या टॉप एनआईटीज हैं, उसके बाद हम्म तो मतलब ठीक है, मतलब ऐसे ही है। हम्म तो हम्म वहां नहीं होता है, तो मेरे को अपना गोल, या तो मैं अपना गोल चेंज करूँ या फिर मैं अपनी हम्म डायरेक्शन चेंज करूँ, तो मैंने अपना गोल हम्म चेंज ना करके मैंने अपनी हम्म, डायरेक्शन चेंज करी कि ठीक है, नाइस। यहाँ से नहीं तो यहाँ से चलते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा बच्चों को जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि आप अपना गोल हम्म मत चेंज करो, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करो, और देखो हम्म कि आसपास और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। और देर आर हम्म प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लाइक इंडिया में भी आप, मैंने आपके उसके थ्रू ही पता करा कि जो अगर आपका आईआईटी से नहीं हो रहा है, गेट स्कोर भी नहीं है, तो भी आप जा सकते हो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स वगैरह हैं, आईआईटी हैदराबाद है हम्म और हम्म ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो हम्म वहां पर भी पैसा मतलब अच्छा खासा लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो हम्म बहुत कम में हो जाएगा। अब रही हम्म बात कि आपको जाना है कि बाहर जाने के लिए पैसा लगेगा, तो उसके हम्म लिए जैसे बच्चे फेयर करते हैं आइल्स एग्जाम, और मेरा हम्म पर्सनली बिलीव ये है कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, आपने अपना बेस्ट शॉट दिया है, और आप कह रहे हो कि नहीं दिस वाज माय बेस्ट शॉट, स्टिल आपका हम्म नहीं हुआ, तो बहुत हम्म अच्छी बात है, नहीं हुआ मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हम्म आपको ऊपर वाले ने कुछ ऐसी चीज के लिए प्रिपेयर हम्म कराया तो उससे बड़ी मिलेगी आपको। इससे बड़ी मिलेगी। तो वो उसमें हम्म डरने की कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर ही अच्छा नहीं करा है और आप हाँ फिर तो कहोगे कि नहीं हुआ, तो हम्म वो डिफरेंट थिंग है। बट आपने प्रिपेयर हम्म अच्छे से किया है, और जिस बच्चे ने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा है, वो हम्म जानता है कि मतलब उसके कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर कि वो आगे चीज निकालता हम्म हुआ चला करेगा। जाएगा। तो अब हम्म आइल्स के एग्जाम, जीआरई एग्जाम और जो भी एग्जाम हो, उसके आगे बहुत छोटे एग्जाम्स है, मतलब तो और हम्म इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए वो हम्म मैटर नहीं करेगा। और आइल्स के हम्म एग्जाम के लिए जो कॉस्ट मतलब आती है, जो मेन फेयर करता है बच्चों को, वो एग्जाम नहीं, वो उसकी कॉस्ट फेयर करते हैं, लाइक 16,000 इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। हम्म तो हम्म वो डरता है कि मतलब नहीं हुआ तो। बट मेरा हम्म मानना है कि जैसे मैंने प्रिपेयर किया आइल्स के लिए, तो इट टुक मी अराउंड 1.5 मंथ। स्टार्ट किया था मैंने हम्म अक्टूबर में, और मैंने नवंबर स्टार्ट में मैंने एग्जाम दिया था। तो मेरा हम्म स्कोर था 6.5 बैंड साइड, और वो इतना हम्म सफिशिएंट होता है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएगा एडमिशन, कि उसमें ऐसा नहीं है हम्म कि आपको टॉप करना है कि 9 आउट ऑफ 9 ही चाहिए, नहीं, मतलब आपको बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, बाकी आपकी हम्म ओवरऑल प्रोफाइल है वो। और हम्म बाकी बाहर जाने के लिए जो अपनी पॉकेट से ना खर्च करके आप लोन ले सकते हो, और जो अच्छे से प्रिपेयर करा है जिसने इंडिया में, वो अपना भरोसा कर सकता है अपनी तैयारी के ऊपर, और वो हम्म लोन लेकर के जा सकता है, वो बिलीव करे अपने ऊपर, अपने क्रेडेंशियल्स के हम्म ऊपर। तो हम्म आई मीन हम्म दिस टू गुड। गो। Okay, so Farhan, what matters is not the money you invest or spend. What matters is the return on your this investment. तो अगर आपको रिटर्न मिल जाए तो nothing to worry. Then you should spend it and you should invest on yourself. And as it is said that money spent on the education give you best dividend. And I'm very sure वो best dividend आपको देगा. So उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. And yes, once you prepare very well for exam, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है, फिर अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो मे बी आपके लिए कुछ और रखा है, अच्छी चीज रखी है, डेस्टिनी किसी और डायरेक्शन में है। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि गोल चेंज मत करो, लेकिन अपना या रास्ता चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। उसी गोल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता बंद हो रहा है, दूसरा रास्ता ओपन करो। बहुत सही बात आपने बताई। अब फरहान मैं चलता हूँ अब्रॉड का जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे हमने एक्सप्लोर करना है। नॉर्मली यूएस, जर्मनी, यूके, ऐसी कंट्रीज, कनाडा वगैरह में लोग ट्राई कर रहे हैं। इटली के बारे में हमें बताओ। बहुत कम अवेयरनेस इटली के बारे में है, थोड़ा बताओ इसमें कैसे अलग है सिलेक्शन प्रोसेस। सर, इटली में एक तो जो यूनिवर्सिटीज है वो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है, लाइक मेरी जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ पॉली मिलान, उसकी रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है 123 है। और मैं हम्म अपने सब्जेक्ट की बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 19 नंबर पर आती है। ओके। तो अब उसमें इटली में जाने में बेनिफिट ये है कि वहां पर आपकी मास्टर जो है वो फुल्ली फंडेड है एक तरीके से। वहां पर दो अच्छा। टाइप की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इटली में बेसिकली। हम्म एक मेरिट हम्म बेस्ड है,
और एक नीड बेस है। हम्म। अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें आपकी तीन टाइप की स्कॉलरशिप होती है मेरिट बेस में, एक प्लैटिनम, एक सिल्वर और एक गोल्ड। तो अच्छा। प्लैटिनम में इन तीनों स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फी पूरी वेव ऑफ होगी, ट्यूशन फी हम्म। आपको नहीं देनी है। और प्लैटिनम में आपको अमाउंट मिलता है वो 10,000 यूरो पर ईयर मिलता है। हम्म। और उसके बाद प्लेटिनम के बाद सिल्वर में आपको मतलब कोई अमाउंट नहीं मिलता है, फी वेवर मिलेगा। और गोल्ड में आपको 5,000 यूरो पर ईयर अमाउंट मिलेगा। ठीक है। अब लेट सपोज अगर किसी का इसमें नहीं मिलता है, मेरिट बेस नहीं मिलता है, तो दूसरी स्कॉलरशिप आती है नीड बेस। और हम्म। इंडियंस के पास जितना मैं जानता हूँ कि इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी मतलब वहाँ के उसके अकॉर्डिंग में आ पाए। तो हम्म। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आई बिलीव अप्रोक्स 90 to 95% बच्चों को वहाँ मिल जाता है। बस वहाँ पे ओके। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपकी पेरेंट्स हम्म। की कितनी इनकम है और आपकी हाउस की वैल्यूएशन कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जैसे उन लोगों का बेसिक क्राइटेरिया है कि अराउंड इंडियन करेंसी में आपकी 16 लाख के अंडर में आपकी इनकम है, 16-17 लाख के अंडर में, तो एनुअल। आप हाँ हम्म। एनुअल, तो उसमें आप अंडर में उसके अंदर आ सकते हो। और उस हम्म। स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये है कि आपकी ट्यूशन फी पूरी वेव ऑफ होगी उसमें भी। उसमें हम्म। आपको लाइक पूरे ईयर में 7,000 यूरोज मिलेंगे। वो एक साथ में नहीं मिलता है अमाउंट, वो धीरे धीरे करके क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद में जो है आपको अकोमोडेशन डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, वो उन्हीं की तरफ से रहेगा, या तो यूनिवर्सिटी का, या डिस्काउंटेड रेट पर रहेगा। और वन टाइम का मील उनकी तरफ से रहेगा, वो सारा उसके हम्म। अंदर कवर्ड रहता है। तो ये चीज़ है जो बाकी कंट्री से इटली को अलग बनाती है। और अगर आपका हम्म। वहाँ अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी से हो रहा है, तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपकी आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, और अ, आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा वहां से। तो हम्म। बाकी अगर आप यूएस में देखेंगे तो 60-70 लाख 1 CR तक वो टच करता है, बट रिटर्न ऑन हम्म। इन्वेस्टमेंट वहां भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है, इतना रिस्क नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हम्म। बेस्ट है कि वो इस साइड में आ जाए। और हम्म। मेनली क्या है कि आपको मास्टर्स क्यों करनी है, आपको मास्टर्स हम्म। इसलिए करनी है कि आपको एंड टर्म गोल है कि आपको अच्छी कंपनी में लैंड करना है, जॉब। वहां से हम्म। अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते जाना है आपको। फिर आपकी हम्म। आपके बाद उसके बाद ना आपकी स्किल्स मैटर करती है, आपकी हम्म। डिग्री मैटर नहीं करेगी। तो अगर आपको वहां हम्म। से स्किल्स डेवलप कर पा रहे हो और इंटरनेशनल डिग्री आप ले रहे हो सेम अमाउंट में हम्म। जितना आप यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर ट्रिपल आईटी हम्म। हैदराबाद तो वहां से उतने हम्म। में मिलता, तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई गलत चीज है। और आपको हम्म। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा उसके साथ में, सही बात है। तो हम्म। काफी मैटर करता है। हम्म। अच्छा फरहान, दो तीन चीजें पूछूंगा अभी। एक, आपने जो बताया प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर स्कॉलरशिप वगैरह, मेरा ध्यान प्लेटिनम की तरफ गया। 10,000 यूरो आपने बताया। मेरे को ये बताइए कि खर्चे के लिए कितना चाहिए, मतलब अगर आप इटली में रह रहे हैं तो क्या 10,000 यूरो में आपका सारा खर्चा हो जाएगा, या जेब से डालना पड़ेगा, घर वालों से मंगवाना पड़ेगा पैसा? नहीं सर, 10,000 के अंदर बहुत आराम से मतलब आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए लेट सपोज वर्स्ट के सिनेरियो लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कुछ भी हाँ जी। नहीं, आप हम्म। जाते हो, तो हम्म। जो पॉली मिलान की वो है एप्लीकेशन, मतलब स्टूडेंट की वहाँ पढ़ने की फीस है मास्टर्स की 2 साल की, वो हम्म। अराउंड इंडियन करेंसी में 7 लाख के आसपास है। और जो अच्छा। हाँ, और जो हम्म। आपका लिविंग एक्सपेंस आता है वो आता है वहाँ पे 2 साल का 20 से 25 लाख के आसपास। ओके। तो हम्म। और जो ये हमारे को 10,000 जो यूरोज दे रहे हैं, उसमें अगर मैं एकोमोडेशन की बात करता हूँ तो वहां पर आराम से आपको 280 to 350 के बीच में आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा पर मंथ के हम्म। हिसाब से। और उसके हम्म। बाद वहाँ खाने पीने के लिए आपको 150 से 200 यूरो लगेगा। तो मतलब ये दस हम्म। हजार के अंदर आप आराम से कर सकते हो। और आप हम्म। ऐसा नहीं है कि आप लेविश लाइफ जी सकते हो वहां पर, वो चीज़ तो हम्म। पॉसिबल नहीं होगी, बट हम्म। ये इस अमाउंट के अंडर में आप कवर कर लोगे सारा। और हाँ अगर मतलब। नीड हम्म। पड़ी आपको लेने की भी, तो घर से 2 लाख 3 लाख मैक्स 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका। ये 2 साल का? हाँ, 2 साल का। हम्म। अच्छा तो फरहान, अभी मेरे को एक बात बताइए आप, जैसे मान लेते हैं किसी को ये प्लेटिनम वगैरह का मिल जाता है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? जैसे अब नया स्टूडेंट को जो आपको सुन रहा है इस टाइम पे बैठा हुआ, उसको ये बताएं कि उसको कितना जेब से खर्च करना पड़ेगा। जैसे जीआरई तो होता नहीं है, टोएफल लगाने के कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अप्लाई बाहर जाने का कितना, तो कितना जेब में पैसा चाहिए, वो घर वालों को क्या बोले कि साहब मेरे को इतना पैसा चाहिए, उसके बाद तो मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, अगर सपोज स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है उसको। सर इसमें ऐसा है कि आपको पहले आइएलटीएस सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 16,000 तो चाहिए। उसके हाँ। बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग एप्लीकेशन फीस है। लाइक हम्म। पॉली मिलान की थी 4,800 के आसपास। हम्म। और हम्म। ऐसी बाकी यूनिवर्सिटीज, किसी की 5,000, किसी की 6,000। तो वो अलग हम्म। अलग यूनिवर्सिटी का वैरी करेगा। उसके बाद में हम्म। वो डिपेंड करता है आप कितनी यूनिवर्सिटी में वहाँ अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद हम्म। फिर जब आपका एडमिट आ जाता है वहां से, तो एक हम्म। आपको एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी, वो है अराउंड 16,000 के आसपास। तो जब वो हम्म। एडमिशन हो जाएगा आपका, तब उसके बाद वो स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताएंगे मिली है नहीं मिली है। और हम्म। मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलती है तो अगर मिलने के बाद भी आप जाते हो, तो वो ऐसे नहीं है कि जाते के साथ ही आपको अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, लीजिए आपके लिए है ये सब, हम्म। नहीं हम्म। होता है। वहां पे हम्म। आपको जाने के बाद आपको एटलीस्ट
कम से कम 2 से 4 लाख आपको अपनी जेब में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 2-4 महीने बाद आपको क्रेडिट करता है अकाउंट के अंदर। ओके। तो वो मिनिमम बेर मिनिमम आपको 5 लाख फॉर द, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो आपको अपने पास रखना चाहिए। तो हम्म इट्स गुड टू गो। मतलब जो बाहर एमएस की सोच रहा है उसके पास 5 लाख का स्टॉक होना चाहिए, तब हाँ उसको प्लान करना चाहिए बाहर का। हाँ हाँ हम्म हाँ। अच्छा, एक और चीज फरहान, मेरे को अब ये बताइए, आपकी जो स्कॉलरशिप के लिए क्रेडेंशियल चाहिए टिपिकली, अब मैं हम्म। एज अ स्टूडेंट सुन रहा हूँ मैं आपको कि साहब मेरे को, मैंने भी फरहान की तरह जाना है, तो क्या क्रेडेंशियल चाहिए मेरे? सीजीपीए, बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, सीजीपीए चाहिए, या मेरे को क्या अपना प्रोजेक्ट चाहिए, क्या चाहिए मेरे पास, सो दैट मेरे को प्लेटिनम वगैरह कुछ मिल जाए और मैं जा सकूं? सर जैसे ये स्कॉलरशिप काफी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, और कंपटीशन काफी टफ है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इधर आते हैं पढ़ने के लिए, हम्म स्पेशली इन इटली। तो वहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स में क्या चाहिए? अगर कोई अंडर ग्रेड में है तो वो मेहनत करके अपने सीजीपीए इंप्रूव करे, क्योंकि हम्म अगर आपकी सीजीपीए हाई होगी तो ही आपको ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि मेरे ठीक साथ है। के कुछ बच्चे हैं जिनको रिजेक्शन भी मिला है वहां से, उनकी परसेंटेज हम्म उतनी अच्छी। तो हम्म आपको करना है कि पहले आपको सीजीपी अच्छी लेनी है। सीजीपी अगर मान लीजिए नहीं है आपकी अच्छी, तो दूसरा उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी चीजें भी होती हैं, लाइक आप हम्म जीआरई लिख सकते हो। जीआरई में अगर आपका हम्म स्कोर अच्छा है तो वो कंपनसेट कर देगा उसको, कि ठीक है इसके पास हम्म जीआरई है। वो नहीं हम्म है, हम्म उसके अलावा आप अंडर ग्रेड में आपके पास कुछ प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग बीटेक में, तो आपके हम्म वो प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए। आपने प्रोजेक्ट हम्म में काम अच्छा होना किया होना चाहिए, जिस लाइन में हम्म आप जा रहे हो उससे रिलेटेड हो, तो भी मतलब बेस्ट है फिर तो। उसके हम्म अलावा आपके पास इंटर्नशिप होगी। और उसके हम्म अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है आपका हम्म मेन एसओपी और एलओआर हम्म और सीवी। हम्म आपका मेनली आप हम्म यूनिवर्सिटी, जैसे हम यूनिवर्सिटी वाले हमें नहीं जानते हैं, वो हमें कैसे जज करेंगे? हमारे क्रेडेंशियल्स को देख के जज करेंगे, और हमारे हम्म, लेटर ऑफ मोटिवेशन को देख के जज करेंगे कि इसका मोटिवेशन कैसा है। तो अगर सही वो है। बेस्ट है तो आप मतलब मिल जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, मैंने सुना है कि इटली में अलग अलग लेवल ऑफ इंटरव्यूज या अलग अलग लेवल्स होते हैं शॉर्टलिस्टिंग के, और जहां तक मैं जान रहा हूँ कि आपका पहले लेवल पे ही सिलेक्शन हो गया फरहान, तो ऐसा यस सर। कैसे हुआ? मतलब व्हाट वाज क्रेडेंशियल्स यू आर हैविंग जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी? ओके सर, इसमें क्या है बेसिकली, इटली में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जैसे दो इनटेक, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी उसमें दो इनटेक्स थे। और हम्म पूरे यूरोप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने हाई चांसेस होंगे आपको वहां पर एडमिट मिलने के। लेकिन हम्म मैंने जो अप्लाई किया था, वो जो फर्स्ट कॉल थी उनकी 12 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर तक थी, तो मैंने 8 हम्म नवंबर को अप्लाई किया था। तो हम्म उसका रिजल्ट वो अभी मेरे को मिल गया। अगर मान लीजिए हम्म आपकी ये डेडलाइन मिस हो जाती है तो सेकंड जो हम्म कॉल आती है उनकी वो आती है 9 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो हम्म उसके बीच में वो जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो लोग वो फुलफिल करते हैं। और अगर हम्म आपने पहले ही स्लॉट में मान लीजिए आपकी 8.5 या 8 सीजीपीए भी है और आपको एडमिट मिल हम्म गया है फर्स्ट कॉल के अंदर, तो आपकी हम्म सीट फिक्स हो चुकी है उधर। और जो सेकंड हम्म स्लॉट में आएगा वो ऑब्वियसली उसको उससे अच्छी सीजीपीए अच्छे क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे, तभी वो आपको लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। हम्म तो हम्म अगर आपके सीजीपीए नहीं अच्छी, इतना मतलब बहुत अच्छा क्रेडेंशियल आपके नहीं है, तो आप ट्राई हम्म, करिए फर्स्ट कम मतलब जैसे ही खुले वैसे आप अप्लाई करें, और अच्छे ओके। हैं तो बाकी। अगर जैसे मेरे क्रेडेंशियल जो थे, जितना मुझे फील हुआ कि मेरे सीजीपीए काफी अच्छा था, और मेरे हम्म पास अलग से जाकर के मेरे पास गोल्ड मेडल था, तो शायद उन हम्म लोगों ने इस चीज को कंसिडर करते इसको हुए मेरे वैल्यू। को। अब मेरे साथ में एक फेलो ने अप्लाई किया था, लेकिन उसको रिजेक्शन मिला क्योंकि उसका सीजीपीए मेरे से थोड़ा सा कम था। तो हम्म ये चीज है जो मैटर करेगी। ओके। सो एनी लैंग्वेज इशू बिकॉज इट इज इटली एंड कोई ट्रबल आता है उसमें? हाँ मतलब अगर आपको कोई भी मतलब दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अगर जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो वहां पर आपको वो कंट्री की लैंग्वेज चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई भी आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई इटालियन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहां पर जाके वो लोग आपको सिखाएंगे, और जब आप हम्म पास कर आउट होंगे वहां से, तो वो आपको सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने इटली में इटालियन यहाँ पे सीखी है इटली में आके। और हम्म उसके साथ साथ जब आप वहाँ लोकल कंपनीज में अप्लाई करेंगे, लाइक जो मेजर सिटीज है, मिलान हो गया, रोम हो गया, तो वहां हम्म पर टूरिस्ट काफी ज्यादा है, तो इंग्लिश स्पीकिंग है, मतलब वहाँ कोई ऐसा बहुत ज्यादा बैरियर फील नहीं ओके। होगा। लेकिन एट द एंड आपको अगर वहाँ सरवाइव करना है, लोकल से इंटरेक्ट करना है, तो आपको हम्म इटालियन आनी पड़ेगी, तो वो आपको चाहिए ही होगा मतलब। अगर आप हम्म जाने से पहले सीख लें तो चेरी ऑन द केक, और नहीं हम्म वो तो वहां पर जाकर आप कर सकते हैं मैनेज, हम्म, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना। ओके। अच्छा फरहान, अभी आपकी सिलेक्शन हुई है इस यूनिवर्सिटी में, तो आई एम श्योर आपने एक्सप्लोर किया होगा कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दो डिपार्टमेंट में आपको मिला है। आई डोंट नो विच डिपार्टमेंट यू आर चूजिंग, बट एज यू सेड आई वांट वीएलएसआई, तो मे बी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएं। यस सर। और आपने ये भी सोचा होगा कि उसके बाद वहां पे ऑप्शंस क्या हैं। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट, आपका जो अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको? सर वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, लाइक जितना मैंने उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक किया है, वहाँ पर हम्म वो यूनिवर्सिटी एक करियर सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पर हम्म जो कंपनीज हैं वो आके रजिस्टर करती हैं खुद को, और वहाँ से वो लोग रेफर कर देते हैं।
अगर हम्म एक तो आप होता है कि आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो कंपनी में, तो वहां पे हम्म रिजेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं आपके। लेकिन एक हम्म आप जा रहे हो ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वहां पर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ज्यादा होते हैं। और करियर हम्म फेयर के थ्रू वहां पर कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं, आप अपना उनको रिज्यूम देंगे, तो वहां हम्म से तो मेजर कंपनीज जो वीएलएसआई से रिलेटेड हैं, जैसे एसटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स है और हम्म एनालॉग डिवाइसेस है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, ये काफी हम्म अच्छी कंपनीज है, तो वहां पर वो सारी हैं उधर मिलान के, इटली के अंदर। हम्म तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, आपने मेहनत करी है। और अगर हम्म, आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको इंडिया क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में दिक्कत है। अगर आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना बेस्ट दे सही। रहे हो, तो आपके लिए कहीं मुश्किल नहीं आएगी। ओके फरहान, किसी ने मेरे को ये बताया था कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, इंडिया में भी प्लेसमेंट होती हैं, वो इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। वही टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन जब आपको फॉरेन किसी कंट्री से उठाते हैं और जब वो इंडिया से उठाते हैं, तो उन दोनों का आपको ट्रीटमेंट अलग है। मे बी सैलरी में, मे बी ग्रोथ में, वो ट्रीटमेंट अलग है। और उस स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बताया था कि सर अगर मैं आईआईटी कानपुर से मास्टर्स करता और अब मैंने यूएस से मास्टर्स की है, सेम ही कंपनी मेरे को बहुत ही अलग डोमेन में रखेगी, चाहे वो मेन मेरे को कोर आरएनडी में काम दे दे, क्योंकि उनके आरएनडी सेंटर शायद उन्हीं कंट्रीज में हैं। तो आप इस चीज को कैसा देखते हैं? फरहान अगर टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में आईआईटी से जाते हैं, या अब फरहान इटली में इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या लगता है जैसे मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट प्लेसमेंट मतलब कंपनीज में यूनिवर्सिटी में जाने के अलावा अलग से प्लेसमेंट भी खोलता है अपना। तो मैंने लास्ट ईयर था, मैंने अप्लाई किया था उसमें, और उसमें मेरा पहले तो उनका क्राइटेरिया था कि आप बेयर मिनिमम 85% से ऊपर होना चाहिए, तो वो लोग लेंगे। तो मेरा वो फर्स्ट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद रिटर्न उन्होंने दो रिटर्न लिए मेरे, वो भी क्वालिफाई हुए, बट एट द एंड मैं इंटरव्यू में जाके मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, तो मैं आप? वहां से रिजेक्ट हुआ। उसके बाद अगर मेरे को वही कंपनी आईआईटी से उठाती, तो वो मेरे को पैकेज देती 40 LPA के आसपास का। हम्म तो उसके बाद और वही कंपनी अगर यूएस में बात करूं, तो जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं और जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज में जो मेजर डिफरेंस है वो है आरएनडी का। तो वहां पर हम्म जो है काफी अच्छी रिसर्च चलती है, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर रिसर्च अच्छी हुई है, बच्चे का माइंड उस रिसर्च ओरिएंटेड है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि उसको रिसर्च साइड में फील्ड के अंदर डालें। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बाकी कंपनीज में भी अच्छी होगी। तो हम्म वो चीज मैटर कर जाती है, क्योंकि इंडिया में हम्म इतना नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ वो लोअर वर्क के लिए जो रहता है उसमें हम्म आपको हम्म consider हम्म। मैं अनलेस यू आपको आर दो बहुत टॉप नॉच हो, आप मतलब अपने आईआईटी हम्म में आप रैंक वन हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो आपको हम्म आरएनडी के लिए वो यूएस ले जाएगा, ठीक है, आप वहां चल सकते हैं। नहीं तो हम्म। फिर मैं एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा था, उसका जेई में हुआ था सिलेक्शन, और उसका फ्रेंड अब्रॉड चला गया और उसका भी जेई में हुआ। अब वो मेरे को बाद में बताता, जो इंडिया से गया था मास्टर्स वगैरह करके आईआईटी से, बताता कि सर मैं प्रेजेंटली एक टीम में काम कर रहा हूँ, जिस टीम को वो लीड कर रहा है, जो इंडिया में नहीं सिलेक्ट नहीं हो पाया आईआईटीज में, लेकिन वो बाहर चला गया। बाहर चला गया, जीई में चला गया, जीई में चला गया, तो उन्होंने उसको अमेरिका में ही पोस्टिंग दी। अमेरिका में पोस्टिंग दी तो अमेरिका का जीई सेंटर और बेंगलोर का जीई सेंटर में बहुत फर्क है। तो बोलता है कि मैं उन चीजों में डील कर रहा हूँ जो सरसरी है, सरफेस पे है, डेप्थ पे नहीं है, और डेप्थ पे जो काम कर रहे हैं वो यूएस में कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेज आ गई जिसमें मेरे को, मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ, इन द सेंस कि वो एक्चुअल में चीजें कर रहा है और मैं जो कर रहा हूँ वो सरफेस चीज कर रहा हूँ। और वहां से मेरे को फिर लगा कि नहीं साहब, मेरे को बाहर चले जाना चाहिए, और इसलिए मैं पीएचडी करने बाहर जो है आ गया। ये मेरी इंटरेक्शन एक स्टूडेंट के साथ हुई थी। तो क्या आपको ये चीज लगती है कि ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा होता है, क्योंकि अब देखिए जो कंपनी जीई है या फिर आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ले, तो वो कंपनीज ही यूएस ओन्ड है सारी। तो हम्म यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, और वहाँ की एजुकेशन उन लोगों को पता है कि यहाँ पर कैसे एजुकेशन मिलती है, और हम इस बच्चे के हम्म ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी, इसलिए क्यूएस रैंकिंग मैटर करती है यूनिवर्सिटीज की भी। मतलब आप देखेंगे हम्म तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप पर हैं, तो किसी बात के लिए वहाँ पर टॉपर हैं वो लोग। तो वहाँ पर हम्म आरएनडी में जो आप काम करेंगे उनके साथ, वहाँ पे जो सीखेंगे, जो आपको ग्रोथ मिलेगी, वो हम्म काफी बेटर होगी यहाँ इंडिया के कंपेयर में। इसलिए इंडिया के हम्म वहाँ पे जो प्रोफेसर भी हैं इनफैक्ट, जो इंडिया से हम्म गए हैं, वो आईआईटी से बीटेक वगैरह किया, उन्होंने एमटेक किया, पीएचडी वहाँ करा, तो वहाँ पर लीड कर रहे हैं वो सारे। क्योंकि हम्म वहाँ पर इतना अच्छा रिसर्च वो लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, और हम्म उनके पास फंडिंग है बेसिकली। तो हम्म यूनिवर्सिटीज कंपनीज फंड करती हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट पर काम करिए। मान लीजिए जीई ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, वर्जीनिया टेक का एग्जांपल लेते हैं, यूएस की यूनिवर्सिटी, उसमें जीई ने आपको फंड किया कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करिए, और उसमें सपोज मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, उनको मेरा काम समझ आ गया, तो वो डायरेक्टली मेरे को आरएनडी में वहां पर रिक्रूट रखेगा। कर लेंगे। तो ये चीज है। हम्म। अच्छा फरहान, एक चीज जिस पे मैं काम कर रहा हूँ पर्सनली, और जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका इनिशिएट करूँ इंडिया में काफी ज्यादा लेवल पे, वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे ना टाइम वेस्ट ना करें, ग्रेजुएशन के बाद 5 6 6 साल वेट ना करते रहें एक हाइपोथेटिकली अच्छी जॉब की। नो डाउट पीएसयूज अच्छे हैं,
लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं पीएसयू में जो बच्चा 10 साल के बाद पीएसयू से मैं डिस्कस करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट 2011-12 में पीएसयू चले गए, अब उनसे जब बात होती है, वो भी पीएचडी के लिए अब्रॉड करके ट्राई कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं साहब अब हम स्टैग्नेंट हो गए हैं। नथिंग अगेंस्ट पीएसयू, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता होगा। लेकिन मेरे को ये बताएं, जैसे आप बता रहे हो टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में इंडिया में ही 40 लाख पर एनम का आपको पैकेज लग जाते हैं, ऐसे से अच्छी सैलरी मिलती है। तो ईयर आफ्टर ईयर 4-5-5 साल वेस्ट करने का और वेट करने का कि मेरा आईयूसीएल में हो जाए, मेरा किसी और में हो जाए, और 5 साल वेस्ट आप कर रहे हैं, ये क्या ये सही स्ट्रेटेजी है? या आदमी को, जैसे आपने बताया कि साहब अपना एक आइडेंटिफाई करो डोमेन, आप इंजीनियर हो तो भाई बीएलएसआई या जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप जाओ और अच्छा करियर बनाओ बाहर। ये चीज कैसे स्टूडेंट को समझाया जाए, ये आप बताओ। सर इसके लिए ना, मतलब पहले तो हमें थोड़ा और पीछे आके काम करना पड़ेगा। जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप इंडिया में आईआईटीज के अंदर हो तो वेल एंड गुड है, वहां पर मतलब पढ़ाई बीटेक अच्छे लेवल पे होती है और मेहनत भी कराई जाती है बच्चों पे। हम्म। लेकिन आप देखते हैं टीयर 3 यूनिवर्सिटीज जो है वहां पर पढ़ाई मतलब ना के बराबर होती है। जो बच्चा कर रहा है वो अपने हम्म। सेल्फ लेवल पे करता है, प्रोफेसर हम्म। कोई रिसर्च नहीं करते हैं। बट हम्म। अगर वही चीज आप वहां पर करें और वहां पर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो उसके अंदर, ठीक है हाँ ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी बेसिकली इंडियन माइंड जो है वो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। और लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लाइफ सेट कब होती है? जब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको खुशी मिल रही है और यस। आपको आउट ऑफ पैसा इंटरेस्ट। मिल रहा है उसमें अच्छा। एट द एंड आपको मतलब पैसा अच्छा मिल रहा है, आप खुश हो तो आप सेटल हो। अदरवाइज आपको हम्म। पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, खुश नहीं हो तो सेटल को मतलब समझ नहीं हम्म। आता है। हम्म। तो अगर हम्म। आपने कॉलेज टाइम में ही प्रोजेक्ट्स किए हैं, अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट की रिसर्च करी है आपने, तो आपका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर है। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज पास आउट करेंगे, आप नो डाउट आप अटेम्प्ट दीजिए। आप अगर आपका लगता है तो बहुत अच्छी बात है, पीएसयू बुरी चीज नहीं है। और जो हम्म। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा पैकेज भी हम्म। देगी, लाइफ भी अच्छी हम्म। चलेगी। लेकिन एट द सेम हम्म। टाइम वो उतना आपको अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी साथ में आपको देखना पड़ेगा। कि ठीक है हम्म। आप एक इंजीनियर हो, आप लाइक लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम लोग नहीं देखते। हम लोग सिर्फ देखते हैं, जैसे अभी मैं ही एग्जांपल लूँ तो अगर बच्चा भी देखेगा या तो गवर्नमेंट एग्जाम वो देख रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए, नहीं तो उसमें प्राइवेट में भी जा रहा है तो सिर्फ वीएलएसआई मिल जाए। सिर्फ वीएलएसआई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको और भी देखना है। सिग्नल प्रोसेसिंग हम्म। विद मशीन लर्निंग एक नया ट्रेंड चल हम्म। रहा है इस समय, तो आपको वो हम्म। चीज साथ के साथ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। और एट द एंड गोल जो आपका है कि आपको मतलब पैसा कमाना और अच्छा आपको सेटल होना है, अपने बच्चों को हम्म। अच्छी एजुकेशन देनी है, तो वो सब हम्म। फुलफिल होना चाहिए। तो हम्म। उसलिए आपको उधर थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और हम्म। अब जो आपका इनिशिएटिव है कि आप जो, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं कि आपने बोला है कि अगर आपके पास गेट, आप पहले ही मतलब मैंने पहली बार सुना कि अगर गेट नहीं है तो भी आप आईआईटीज में एमटेक कर सकते हो। तो वो हम्म। नॉलेज नहीं है। और इनफैक्ट इंडिया में हम्म। नॉलेज ये भी नहीं है कि आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हो। वो भी हम्म। इधर से ही मेरे को पता लगा कि ठीक है हम्म। डायरेक्ट पीएचडी भी हम्म। एक और ऑप्शन है हमारे पास। हम्म। तो वो चीज हम हम्म। लोगों को थोड़ा अपना माइंड ओपन करके हम्म। रखना पड़ेगा। ठीक है एक चीज नहीं तो दूसरी चीज, दूसरी नहीं तो तीसरी चीज, लेकिन एंड गोल जो है हम्म। आपका वो सेम रहना चाहिए। सही है। अच्छा फरहान, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे अब्रॉड जब जाते हैं तो अब इटली हुआ या जर्मनी हुआ या यूरोप हुआ, उसमें तो आपने जैसे बताया 20-25 लाख रुपया खर्चा आएगा अगर अपनी जेब से भी डालना है। लेकिन यूएस वगैरह में महंगा है, 40-50 लाख भी शायद लग जाए। तो हम्म। लोन लेना कितना सेफ होता है, नंबर वन, और कितना इजी होता है? मतलब मैं अगर लोन लेना चाहूँ, मेरे पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल इनकम जनरेट करते हैं और मेरे को 30-40-50 लाख का लोन लेना है, तो कितना डरने वाली बात है ये, और कितनी आसानी से मेरे को लोन मिल सकता है अगर यूनिवर्सिटी हमें अच्छी मिल जाए? कि साहब हमने अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी मेरे को अच्छी मिल गई, लेकिन अब मैं पैसे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो बैंकिंग सिस्टम, इंडियन पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक से लोन लेना कितना आसान होता है और कितना सेफ होता है? ले लेना चाहिए या रिस्की हो जाएगा बहुत ज्यादा? नहीं सर, लोन अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हुआ है तो बैंक जो है वो इजीली 1 CR तक देने को तैयार होते हैं कि आप ठीक है अच्छा। आप ले जाओ, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उन लोगों को पता है यहाँ से अच्छा इसको इनकम आरओआई काफी अच्छा मिलने वाला है, तो वो लोग देने हम्म। को तैयार होते हैं। और मेरे हिसाब हम्म। से डरना उसको चाहिए जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है। अगर आपको हम्म। अपने पोटेंशियल्स पे अपने हार्डवर्क पे भरोसा है और आप हम्म। जाहिर सी बात है आप 40 लाख का लोन लेके जा रहे हो, तो आप वहां पर मजाक तो नहीं करोगे, आप हार्डवर्क डबल कर बिल्कुल। दोगे अपने, क्योंकि आपको वो सही चाहिए बात। निकालना है। तो हम्म। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की जरूरत है। और 40-50 लाख का जो लोन है तो वो इजीली हम्म। आप वहां पे रीपे कर सकते हो जब आपकी जॉब लगेगी। 3 साल का जो। वो वर्क वीजा देते हैं यूएस वाले। हम्म। तो हम्म। 3 साल के हम्म। अंदर मैंने सुना है कि 1.5 साल 2 साल, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पर यूएस में, तो वो बोल रहे हैं कि हम्म। मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल लगता है जो इजीली आप रिपे कर दोगे लोन। वापस कर देते हैं। हाँ, और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए वहां पर अप्लाई करें। अगर आपने बीटेक हम्म। करी है, एमटेक करी है, तो आप पीएचडी के लिए जाएं। अगर हम्म। डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पर आपकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी या तो आपकी ट्यूशन फी पूरी खत्म कर देगी या 50% कर देगी आपकी।
और आपके हम्म साथ वहां पे स्टाइपेंड आपको देगी साथ में। तो हम्म उसमें आपका लिविंग स्टाइपेंड में आपका लिविंग एक्सपेंस इजीली निकलता है। और जो ट्यूशन हम्म फी हाफ हुई है, जैसे 40 लाख आपकी ट्यूशन फी है, तो वो 20 लाख हो गई, तो वो आपके बजट हम्म में आ जाएगा, मतलब इतना ज्यादा हम्म आपको ट्रबल नहीं करेगा। और मान हम्म लीजिए हम्म वो चीज भी नहीं होती, तो आपको वहां जाने के बाद आप अप्रोच कर सकते हो टीए, आरए और अदर कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने के लिए। तो वहां से आपका लिविंग हम्म एक्सपेंस निकल आएगा और ट्यूशन फी वेव अप हो जाएगी। अब मान लीजिए हम्म ये चीज इनमें से कुछ भी नहीं होता है और आपको अपनी हम्म पॉकेट से ही लगाना पड़ रहा है। तो अगर हम्म आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है और आपको अपनी ब्रांच मिल रही है जिसमें आप काम करना चाह रहे हो, तो हम्म आपको जाना चाहिए। मतलब एक बार चांस लेना पड़ेगा, तो अगर अभी रिस्क हम्म नहीं लेंगे तो फिर बाद हम्म में रिग्रेट ना हम्म रहे, तो इसलिए आपको लेना चाहिए हम्म रिस्क। हम्म। अच्छा फरहान, अब मेरे को ये बताइए कि जैसे इंडिया में प्लेसमेंट का सिचुएशन होता है कि साहब कंपनीज आती हैं 2-4 दिन में और वो प्लेसमेंट आपका होता है, अब्रॉड में कैसे होता है? जैसे फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कैंपस प्लेसमेंट का सिचुएशन कैसे होता है, तरीका क्या है उसका? सर उधर ना कोई कंपनी नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए। पहली चीज वहां पे क्या है कि आपकी करियर फेयर्स होते हैं, कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं वहां पर रहते हैं, आप उनको अपना हम्म रिज्यूम वगैरह दें, फिर आप उनको हम्म डायरेक्ट अप्रोच करिए। फिर हम्म दूसरी चीज वहां पर मेन आता है आपका कनेक्शन कितने अच्छे हैं वहां पर लोगों से, तो आप कनेक्शन हम्म की तो वहां पर जॉब ले सकते हो। जो वहां हम्म पर मेन चीज आपके लिए काम करेगी वो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आपका प्रोजेक्ट है, आपने किस तरीके से काम करा है। और मेन चीज आती है हम्म इंटर्नशिप ड्यूरिंग आपका हम्म जो मास्टर्स या पीएचडी जो भी कर रहे हैं आप, वहां पे आपने हम्म जिस कंपनी में इंटर्नशिप पकड़ ली है, तो वहां से हम्म काफी हाई चांस होते हैं कि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर वो वहीं से मिले। मिल जाएगा। और इंडिया हम्म में तो सीन थोड़ा उल्टा रहता है, यहाँ पर रहता है कि कंपनीज आएंगी, अगर आप टॉप आईआईटीज में से हैं तो आपको इजीली ले जाएगी, और आप हम्म लोअर लेवल यूनिवर्सिटी में तो वहां पर वो टॉप कंपनीज तो अप्रोच भी नहीं कर पाती हैं, तो आपको हम्म उस कंपनी तक अप्रोच करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। और वो लोग हम्म रिज्यूम भी नहीं देखते हैं आपका कभी कभी। तो ओके। ये काफी डिफरेंट हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। मतलब स्किल अच्छी होगी तो जॉब अच्छी लग जाएगी। हाँ, स्किल मैटर करेगी आपकी वहां पर। वो चाहे चलिए यूरोप हो बहुत। चाहे यूएस हो, पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया के अलावा आपके पास स्किल अच्छी हम्म है तो हो जाएगी। इंडिया में अगर आपके पास स्किल उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, तो हम्म आपकी प्लेसमेंट मतलब अच्छी मिलने उसके बाद, फिर उसके बाद आगे ग्रो करने के लिए आपकी स्किल मैटर करेगी फिर। सही है। चलिए फरहान, बहुत अच्छा लगा सारी बातें, बहुत टाइम में, प्रिसाइज हाफ एन आवर में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिला। एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिली है फरहान। आप एक कैपेबल इंडिविजुअल हैं, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए फाइट मारा, और जिसने यूपीएससी के लिए इंडिया में फाइट मारा बोलते हैं दुनिया में कहीं पे भी सरवाइव कर जाएगा और ग्रो जी। कर जाएगा। सो आई एम वेरी श्योर आप वंडरफुल करेंगे फरहान। मैं कुछ सालों के बाद दोबारा आपसे इंटरेक्ट करूंगा, जो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने करियर में। और हम देखेंगे कि कैसे कैसे आगे करियर पाथ हमारा मूव करता है। I wish you all the very best and I thank you for giving your time to me for this थैंक interaction. यू Thank you, थैंक Farhan. यू।